Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q4 and FY21 earnings conference call of Kamdhenu Limited. This conference call may contain forward-looking statements about the company which are based on the beliefs, opinions and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on the touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Satish Agarwal, Chairman and Managing Director of Kamdhenu Limited. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon, and a very warm welcome to everyone present on this call. Along with me, I have Mr. Harish Agarwal, my Chief Financial Officer, and SGA, our Investor Relation Advisors. Before we proceed ahead, I hope you and your near ones are safe and doing well in these unprecedented times. I hope you have received our result and investor presentation by now. They are now available on our website also. Firstly, I am pleased to inform you that Board of Directors of the company has recommended a dividend of 8%, that is 80 paisa per share for the financial year 21. FY21 had begun with challenges across the world. The spread of COVID-19 last year in March 2020 had led to severe disruption in business operations across industries. There was complete nationwide lockdown that was announced in March 20. Both our plants were closed for some time and we adopted work from home policy. However, with the unlocking of the economy and easing of restrictions, we begin with our manufacturing operations in mid-May 20 and it has led to increased business activities. We restarted our operations gradually and we have witnessed a strong quarter-on-quarter improvement in both our business segments. Capacity utilization at both the plants increased gradually over the quarters through the year FY21. Despite of these external challenges, we have ended FY21 on a strong note. We have delivered a steady performance in a year that has been marked by uncertainty due to COVID-19. In spite of COVID-19 impact, our company has clocked revenues of 625 crore with EBITDA of 50 crore and PBT without excluding exceptional item of 31 crores for overall business for FY21. Now to first touch upon the business highlights and performances of the paint business. I have been in the decorative business segment for more than a decade and since then have rapidly scaled up the business. Though through advanced research and development, we have been able to offer a wide range of highest quality paints at affordable prices, ensuring complete customer satisfaction. With our increased concentration on Tier 2 and Tier 3 regions, our products are available across India. We have a strong distribution network and diversified product portfolio with 40 plus SKUs. We have built a formidable 4,000 plus dealer network across multiple cities, regions and cultures. We are continuously striving on expanding our pan-India visibility through aggressive spend on advertising and promotions. With a focus on sustainability, Kamdhenu Paint have made all their paint products eco-friendly, ensuring that beauty of nature remains intact. Our company is focused on increasing share of premium and environmental friendly products. We have given continuous
importance on advertising and promotions. With that focus, we have recently collaborated with Preeti Zinta as a brand ambassador for decorative paint business under brand name Kamdhenu Paints. This collaboration will help enhance the brand's pan-India reach and recall and drive greater consumption across the country. With Preeti Zinta inclusion as a brand ambassador with her wide appeal among the masses, it is said to blend perfectly with the ethos of the brand, aptly representing a modern woman who performs every role seamlessly. We have witnessed certain delay in the restoration of remaining building, plant and machinery due to second wave of COVID-19. Full-fledged operations are expected to commence soon, which will further boost our growth trajectory. In the near term, paint industry players are likely to witness headwinds due to high raw material prices and second wave of COVID-19. However, going ahead, we expect normalization of activities. Further, to update you on the insurance claim, the insurance company during 2021 was in the process of evaluating claim amount, and based on its interim assessment, out of such insurance claim, recoverable an amount of 10.03 crore is likely to be deducted. Accordingly, the company has written off 10.03 crore as exceptional item. An amount of rupees 5 crore as insurance claim recoverable has already released to Kamdhenu Limited in FY21, and the balance amount is expected to be realized in the current financial year. Now, I would like to update on scheme of arrangement. The Board of Directors of the company in its meeting held on 25th January 20 approved the proposed scheme of arrangement, including demerger of paint business into a separate. The company also received observation letter from Stock Exchange, NSE and BSE on 28 September 20. The company has already filed a scheme of arrangement with Honorable NCLT Chandigarh on 15th March 21 for its approval. We are expecting to complete hiring of the paint business within FY22. Upon completion, the demerger of paint business will impart better management focus, facilitate administrative convenience, and ensure optimum utilization of various resources. The proposed demerger will provide for greater accountability and scope for independent expansion of both steel and paint businesses. Now, moving on to the key updates on steel business. With phased unlocking and reopening of the economy, we started witnessing recovery in demand with increase in the construction and infrastructure activities. Our volumes from franchisee and our own manufacturing operations have increased quarter on quarter. This is on account of our strong brand, resilient business model, and well-entrenched distribution network across the country. Also, our recruit business strategy with focus on high margins, B2C sales, asset-light franchising business, and increase in our own manufacturing has led to strong results. Steel demand has remained robust and continues to rise on back of pickup in construction activities. Steel demand is driven by gradual pickup in real estate with relaxation in stamp duties in some states and government thrust on infrastructure spends. Government schemes like Housing for All by 2022, Pradhan Mantri Awas Yojana, and Bharatmala projects are likely to spruce up the demand for the construction material used in housing and infrastructure. This will drive the demand for our products available across the country through our franchisee-based model. Our country has been affected by the second wave of COVID virus. However, with phased unlocking of the economy and government's initiative of vaccination program now open to all above 18 years, we will achieve large-scale immunity among the population and economic activities will be back to previous levels in due course. To conclude, FY21 has been a year with steady performance,
we have seen a strong demand for our product offerings. Here at Kamadhenu, we always believe in improving cost efficiencies and committed to developing world-class products to address the evolving needs of the consumer. We are looking to penetrate further in markets where our presence is less and strengthen our footprint in existing geographies. Going ahead, we are committed towards introducing new products and expanding our business with more franchisees and dealers. Now, I would like to hand over the line to Mr. Harish Agarwal, CFO of the company, to update the financial performance of the company. Thank you, sir. I will take you all through the financials for Q4 and FY21. First, about the paint business. Total sales from paint for Q4 FY21 stood at rupees 67.3 crore as compared to 62.2 crore in Q3 FY21, which is an increase of 8% quarter on quarter, and stood at 55.34 crore in Q4 FY20. For FY21, total at rupees 202.07 crore. We expect the momentum in paint business to sustain going forward with reopening of economy and pickup in the business activities. Paint segment contributed 30.30% of revenue in Q4 FY21. Our own manufacturing volume have been increasing gradually quarter on quarter. The overall volume, including outsourcing, have increased by 10% quarter on quarter to 9,580 KL in Q4 FY21 and stood at 7,562 KL in Q4 FY20. Coming to the steel business, our steel volume, including franchisee route, have increased by 11% quarter on quarter to 7.26 lakh metric ton in Q4 FY21 as compared to 6.57 lakh metric ton in Q3 FY21 and 6.05 lakh metric ton in Q4 FY20. For FY21, our volume including franchisee route stand at 23.90 lakh metric tons. Total brand turnover for Q4 FY21 stood at rupees 4,061 crore as compared to 3,353 crore in Q3 FY21. Quarter on quarter growth of 21% and stood at 2,720 crore in Q4 FY20. For FY21, it stood around 12,000 crore. Royalty income through franchisee was up by 13% quarter on quarter at 26.6 crore as compared to 23.5 crore in Q3 FY21 and stood at 22.2 crore in Q4 FY20. For FY21, it stood at rupees 85.3 crore. Revenue from own manufacturing was up by 32% quarter on quarter at 128.5 crore in Q4 FY21 as compared to 97.7 crore in Q3 FY21 and stood at rupees 87.2 crore in Q4 FY20. For FY21, it stood at rupees 337.8 crores. Profit before tax for the steel business stood at 16.9 crore for Q4 FY21 as compared to 13 crore in Q3 FY21. Quarter on quarter growth of 30% and stood 6.7 crore in Q4 FY20. For FY21, profit before tax stood at rupees 47.1 crore as against 37.3 crore in FY20, excluding exceptional item of rupees 24.38 crores. The company has regrouped its business strategy of reducing B2B sales and focus on improving efficiencies in own manufacturing and on franchisee-based business model, which have led to increased margins and better efficiencies driving growth. Our ROE of steel business as on 31st March 2021 stood at 29.7%, an increase of 680 basis points
from 22.9% in March 20. Our debt equity ratio stands at 0.3x as of 31st March 2021. For the overall business, revenue for Q4 FY21 stood at 222.4 crores as compared to 183.4 crore in Q3 FY21, a quarter-on-quarter growth of 21%, and stood at 235.6 crore, including B2B sales of rupees 70.90 crore in Q4 FY20. For FY21, our revenue stood at 625.2 crores. Our EBITDA was up by 50% quarter-on-quarter to 20.4 crores in Q4 FY21 as compared to 13.7 crores in Q3 FY21 and stood at rupees 8.7 crore in Q4 FY20. Our margins for the quarter stood at 9.2%. For FY21, EBITDA stood at rupees 49.8 crores. Profit before tax, excluding exceptional item, stood at rupees 15.6 crore in Q4 FY21 as against 9.6 crore in Q3 FY21, a quarter-on-quarter growth of 61%, and stood at rupees 3.4 crore for the Q4 FY20. For FY21, profit before tax, excluding exceptional item, stood at 31.1 crores. Our cash flow from operational stood at to the tune of rupees 50.2 crores in FY21. Our return ratio have been continuously improving on account of increased efficiencies in the businesses. Our ROE stood at 7.8% as on 31st March 2021 and ROCE stood at 12.3% as on 31st March 2021. Our debt equity ratio stands at 0.5x. With this, I would like to open the floor for question and answers. Please. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Dinesh Kodecha from Crick. Please go ahead. If you can please see. You made some projections of 450 crores and 1,000 crores of revenue for the paint industry, I think. And a margin of 8 and 11% from -2%. I mean, I would like to know what are the basics of this? I mean, what are the assumptions that you have taken for this particular growth figures? First question. थैंक यू वेरी मच. जो ये एजम्पशंस की आपने बात की है 450 and 1000 करोड़ बाई FY26, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि पोस्ट फायर इंसिडेंस बहुत सारा मटेरियल हम लोगों को आउटसोर्सिंग करना पड़ रहा था और आउटसोर्सिंग में डेफिनेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो हमारी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही थी. और इस साल में लास्ट क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली क्रूड प्राइसेस बढ़ने से पूरी पेंट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी करीब 5 to 6% हमारी इंक्रीज हो गई थी. और बाय द वे इस मार्केट की कंडीशन में कोई भी कंपनी इस प्राइस इंक्रीज को रॉ मटेरियल की पास ऑन नहीं कर पाई है. और जैसा आपको मालूम होगा कि कुछ प्राइसेस रिवाइज हो गई थी जून के महीने में और बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ प्राइस इंक्रीज अभी 1 जुलाई से और लागू हो गया है. तो ऑलमोस्ट उसका जो प्राइस इंक्रीज हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग का इम्पैक्ट था वो ऑलमोस्ट 80-90% जो है अब वो कस्टमर को पास ऑन हो गया है. अभी 1 जुलाई से तो 80-90% पास ऑन हो जाएगा.
दूसरा, अभी स्प्लिट करने के बाद और पूरा हमारा जो पोस्ट फायर पूरी बिल्डिंग हमारी तैयार हो गई है अपने ओन प्लांट की। ऑलमोस्ट 95% प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होकर प्रोडक्शन चालू हो गई है और बाकी 5% भी जुलाई के महीने में वो भी प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो हमारी सफिशिएंट कैपेसिटी अपने प्लांट में भी हो जाएगी और जो लो प्राइस आइटम हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उदयपुर में या हरियाणा में, तो वो भी हमारे को एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर हम लोगों ने अभी सबसे टाई अप किया है। तो ये जो टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं FY22 का, 22 एंड 23 दोनों में हम 50% की ग्रोथ प्लान करके चल रहे हैं। होपफुली जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं या अपने इंटरनल एक्रूवल से हम लोग जो है ये 50% की ग्रोथ FY22 और 23 में हम लोग लेके पाएंगे। और बहुत ही कंजर्वेटिव हमने जो EBITDA मार्जिन है जो -2% से हमने 8% या 11% है, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा और हमारा टर्नओवर इंक्रीज होता है, तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट है एक रनिंग की इंडस्ट्री को या बिजनेस को, तो वो अकॉर्डिंगली मैं समझता हूँ हमने बहुत माइक्रो एनालिसिस करके वर्किंग की है। हमारे पूरे कंट्री में जितने डिपो हैं, कौन कौन से डिपो में क्या प्रोडक्ट सेल होगा, उस प्रोडक्ट की क्या पोजीशन रहेगी, क्या कॉस्टिंग आ रही है, हमने बहुत माइक्रो एनालिसिस पे वर्किंग की है। एंड होपफुली वी विल बी एबल टू अचीव द टारगेट्स डेफिनेटली बाय 22 एंड 23। जो ये 450 करोड़ का टारगेट है इजीली अचीवेबल है। इसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में या कोई और के इसमें वर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर में 1000 करोड़ का प्लान है, हमें होपफुली उम्मीद है कि उस पर काम कर रहे हैं, बहुत डिटेल वर्किंग चल रही है और हम लोग इसे कर पाएंगे, क्योंकि पेंट में बहुत पोटेंशियल है। अभी 18 to 20% की एनुअल ग्रोथ है और सभी कंपनी अच्छा काम कर रही हैं, तो हमारे सारे प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल हैं। और प्रीति जिंटा को इंक्लूड करने के बाद थोड़ा सा हमारे यहाँ काफ़ी इस समय इम्प्रूवमेंट है, डिमांड में भी इम्प्रूवमेंट है, तो हमें लगता है कि ये टारगेट्स हम अचीव कर पाएंगे इजीली। Right, sir. Thank you very much. And sir, second question is, what are the areas of cost discipline that we have got benefit of this year? कौन से एरिया में हमने अपने कॉस्ट डिसिप्लिन किया है? देखिए, मेनली तो जो हमारा फॉर्मुलेशन है, एक तो फॉर्मुलेशन में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है R&D के थ्रू, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और कॉस्टिंग है विद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और अल्टरनेट प्रोडक्ट्स। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलर पुराने उसमें ट्रेडिशनल चल रहे थे और उनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स उनके आ गए हैं। तो एक तो RMC रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग में काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है और दूसरा हमारे इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है कि जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम मिनिमाइज कर सकें। और उसके लिए हमारे पास चूँकि एक ड्रॉबैक है कि कंट्री की प्रेजेंस तो काफ़ी 80% कंट्री में है, लेकिन प्लांट हमारे दोनों ही राजस्थान में है, एक उदयपुर में और एक राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारी कोशिश है कि ट्रांसपोर्टेशन को भी हम मिनिमाइज निगोशिएट कर रहे हैं कि किस तरह से उसमें हम कुछ सेविंग कर सकें, लेकिन अल्टीमेटली तो जो कॉस्टिंग रिड्यूस हो रही है या हमारे ओवरहेड रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो वॉल्यूम और टर्नओवर के ऊपर बढ़ने से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है इसमें। राइट सर, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है कि Tier 3, 2 और Tier 3 सिटी में हम लोग ने 70% मतलब मार्केट 70% जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ पर हम लोग घुसे हुए हैं। अभी Tier 1 सिटीज में आपका कभी इनरोड आपका मतलब पदार्पण होगा? देखिए, Tier 1 में या मेट्रोज में हमारी प्रेजेंस कलकत्ता में भी डिपो हमारा है, हमारी दिल्ली में भी डिपो है, बेंगलोर में भी डिपो है, लेकिन हम उस पर फोकस इसलिए नहीं करते हैं कि जो मेट्रोज में या Tier 1 में है, Tier 1 में एक ब्रांड का कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में। वो क्या करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर ब्रांड में सेट है उनका माइंड कि मुझे यही प्रोडक्ट लगाना है, मुझे एशियन लगाना है या बर्जर लगाना है या नेरलॉक लगाना है। तो चूँकि हमारे को जहाँ से रियलाइजेशन बेटर आती है, फिर मेट्रोज में या Tier 1 में जितने बड़े डीलर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन डिस्काउंट्स में, इंसेंटिव में, स्कीम में बहुत ज़्यादा होती है।
तो वहाँ से रियलाइजेशन बहुत कम आता है। नो डाउट टर्नओवर तो बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी टियर 1 से भी डिमांड आ रही है धीरे धीरे, लेकिन हमारी फोकस यही है कि जहाँ से हमारे को बेस्ट रिलेशन मिले। और चूंकि हमने इसमें जैसे हमने बताया भी कि हमारा अभी पेंटर्स के थ्रू काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पेंटर्स के लिए बहुत सारी हमने इंसेंटिवाइज करने की स्कीम डाली हुई है। इसके अलावा उनको रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, उनका इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब तक पेंटर नहीं जुड़ेगा दिल से, और पेंटर तब जुड़ता है जब उसको बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है, रीजनेबल कॉस्ट पे मिलता है और बढ़िया सर्विस लाइफ उसकी हो। तो शुरू में लोगों को हेजिटेंट थे, लेकिन अब 10 साल हम लोगों को पेंट की इंडस्ट्री में हो गए, तो अब लोगों का ट्रस्ट लेवल डीलर्स का, पेंटर्स का, कंज्यूमर्स का धीरे धीरे आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये जो हमारा डिसरप्शन था 2 साल का पोस्ट फायर इंसिडेंट, ये इससे हम लोग बाहर आ गए हैं। और अब 1 जुलाई ऑनवर्ड जो है हम अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी यूटिलाइज कर पाएंगे। और जो मार्केट की डिमांड है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जितने हमारे ओन प्लांट्स में स्टेनर्स हैं, कलरेंट्स हैं, या इमल्शंस हैं, या स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सचर पेंट्स हैं, वो हम अपने प्रोडक्ट में अपने प्लांट में बना रहे हैं। और जो लो प्राइस आइटम है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है वो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो होपफुली लगता है कि हम इसको जो टारगेट है अपना अचीव कर पाएंगे। राइट राइट सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आपको कंस्ट्रक्शन केमिकल, वॉल पुट्टी और ये निच प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, प्रीमियम वुड फिनिश, वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन, फ्लोर कोटिंग, ड्यूअल प्राइमर, इसके बारे में कुछ कहिए ना सर। कैसे मतलब कैपेक्स कैसे होगा और क्या मतलब उसका कैसे आप ग्रोथ करना चाहते हैं? देखिए, इसमें पुट्टी हम उदयपुर में बनवा रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। क्योंकि पूरा इंडिया में वाइट सीमेंट उदयपुर में मैन्युफैक्चर होता है, तो हम पहले क्या करते थे, अपने प्लांट में अलवर में लेके आते थे, ट्रांसपोर्टेशन इनकमिंग की देते थे, और फिर वापस उधर मटेरियल जाता। साउथ इंडिया में है तो डबल ट्रांसपोर्टेशन पड़ रहा था। तो हमने उदयपुर में ही एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। हमारे अपने ओन पुराने सप्लायर थे, बड़ा प्लांट वहाँ पे उदयपुर में। हमने इमल्शंस के लिए, डिस्टेम्पर्स के लिए, प्राइमर्स के लिए और पुट्टी का प्लांट हमने उदयपुर में सेटअप किया है बड़ी कैपेसिटी के साथ में। तो वहाँ पे हमारी कॉस्टिंग काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, और जैसे इनेमल्स हैं, सॉल्वेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अभी हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो हम केवल नीश प्रोडक्ट्स हैं, जो इमल्शंस हैं, प्लास्टिक पेंट्स हैं, वो अपने प्लांट में हम बनाएंगे। और चूँकि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें मार्जिन ज़्यादा हैं, तो वो हम अपने प्लांट में बना रहे हैं, बाकी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। Thank you very much, sir, for your response, and wish you all the best. Thank you very much. The next, ladies and gentlemen, anyone who wishes to ask a question may press star and 1. The next question is from the line of Amit Shah from Ace Securities. Please go ahead. Hello. जी बोलिए। Thank you for taking my question, sir. Sir, I have few questions on steel. Sir, our brand turnover has seen a sharp increase in Q4. So, what is your guidance for the current year? देखिए, जो Q4 में प्राइसेस, एक तो स्टील की प्राइसेस एबनॉर्मली बढ़ गई थी, तो उससे जो टर्नओवर है थोड़ा सा बढ़ावा दिख रहा है Q4 में। और जो करंट ईयर में है, तो स्टील की जो टर्नओवर है हमारी, वो ऑलमोस्ट हमारी 24 लाख है टोटल मिला के। जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी इम्प्रूव्ड रहेंगी। और टोटल जो टर्नओवर है हमारा, वो ऑलमोस्ट 438 करोड़ का रहेगा हमारा अपना प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग की। और 94 करोड़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार अपनी रॉयल्टी से इनकम। तो टोटल रेवेन्यू हमारा एज अगेंस्ट 423, 530 के आसपास हमारा प्लस जो है रेवेन्यू रहना चाहिए इस करंट 21-22 में। Okay. So, sir, how is the? how have you seen the scenario in Q1 with the second phase of COVID-19? देखिए, जो Q1 है डेफिनेटली डिस्टर्ब तो रहा है,
लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर का Q1 था उससे बेटर परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। और इसमें चूंकि जून का महीना हमारे को मिल गया है, थोड़ा सा लॉकडाउन हटने लगा है, और चूंकि पैन इंडिया हमारी प्रेजेंस है और इस बार पैन इंडिया में सभी जगह धीरे धीरे था, लेकिन मेरे को लगता है कि जो Q1 लास्ट ईयर का था FY21 का, उससे फिर भी शायद हम बेटर रहेंगे। और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि Q1 जो है अच्छा निकल जाए। लेकिन ये जरूर है कि जो भी हमारे साल के टारगेट्स हैं वो नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में स्लोली हम लोग पूरे कवर कर लेंगे, पूरा अचीव कर लेंगे। Okay, sir, nice to hear that. Sir, my second question is, what is the average TMT prices for Q4 FY21 and how has been the increase over Q4 last year and last quarter Q3? एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड होल्ड कीजिए बस प्लीज। एवरेज प्राइस देखिए, जो इस बार एवरेज प्राइस हमारी रही है टीएमटी की, वो 46,128 पर मेट्रिक टन रही है। और लास्ट ईयर जो हमारा Q4 था उसमें ये प्राइस थी 38,198 रुपीज़। Q3 में जो एवरेज प्राइस थी वो 41,200 था, इस बार 46,000 था। दैट मीन्स 5,000 रुपीज़ ए टन Q3 से Q4 में बढ़ गया है। और अभी यही प्राइस प्रिवेल कर रही हैं जो हमारी Q4 में थी, इससे थोड़ा प्राइस प्लस है, इससे भी प्राइसेस अभी थोड़ा प्लस चल रही हैं। तो हमें लगता है कि जो ये इस करंट ईयर के टारगेट्स हम लोग हैं ये सब इजीली अचीवेबल हैं, अनटिल अनलेस कोई कोविड की थर्ड वेव अगर डिस्टर्ब नहीं करती है। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बूम पे हैं या हाउसिंग सेगमेंट में अभी थोड़ा सा काम धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तो हमें लगता है कि डिमांड इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हमारे पास पूरे कंट्री में डिमांड है और सब तरह से पॉजिटिव है। तो ये अप्रैल और मई डेफिनेटली थोड़ा डिस्टर्ब रहा है। अप्रैल का सेकंड हाफ मंथ और मई का फर्स्ट जो है थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये अभी जुलाई ऑनवर्ड जो है बहुत रेगुलराइज हो जाएगी डिमांड सब। Okay, thank you sir. थैंक यू। Thank you. Participants who wishes to ask a question may press star and 1 now. Next question is from the line of Abhinav Kothari from AS Advisor. Please go ahead. Yeah, hi sir. Good afternoon. Good I have two questions pertaining to paints business. Sir, you talked about price increase in paints. You said 80 to 90% of the total increase is already taken. My question is, when we have taken this price hike, in which month? 50% price hike has been implemented in the month of June, which is the current running, and balance price hike is implemented with effect from 1st July. तो इसमें सर क्या है कि थोड़ा सा बूस्टअप 2 डोज में दिया है, और इसका थोड़ा बेनिफिट ये रहता है कि फर्दर प्राइस इंक्रीज हो रही है 1 जुलाई से, तो उसमें थोड़ा जून की सेल्स भी बूस्टअप करने को डीलर को एक कंफर्ट लेवल मिलता है कि भाई जुलाई से प्राइस बढ़ रही है, तो मैं अपना मैक्सिमम स्टॉक अपना रिकवर कर लूँ, कंपनी से ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई ले लूँ। तो उसमें जून की सेल्स भी हमें लगता है कि हम ठीक ठाक कर पाएंगे। जुलाई ऑनवर्ड भी, चूँकि उसके बाद दिवाली के सीज़न के लिए परचेजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि दिवाली जब अक्टूबर नवंबर में आती है तो उसके लिए मटेरियल जो डीलर हैं वो जुलाई के महीने में प्रिकॉर करते हैं और अगस्त सितंबर में काम साइट के ऊपर होता है। तो जिन लोगों को घर में एंटर होना होता है दिवाली के मौसम में, तो उसके लिए जो परचेजिंग है वो जुलाई ऑनवर्ड चलती है, जुलाई अगस्त के महीने में। तो हमें लगता है कि ये जो मार्केट, चूँकि प्राइस इंक्रीज सारी कंपनियों ने किया है, ये पिछले 6 महीने से सब लोग इसको कर नहीं पा रहे थे, अब आके किया है। चूँकि मार्केट में डिमांड है, तो हमें लगता है कि ये मार्केट में एक्सेप्ट हो गया है एक तरह से। ऑलमोस्ट सबको मालूम था, डीलर को भी मालूम होता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है रॉ मटेरियल का, कंपनी कभी भी बढ़ाएगी। तो आई थिंक ये
सबके इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट 80 to 85% सब लोगों ने पास ऑन कर दिया है। और बाकी अब आगे देखेंगे, अगर मेजर कंपनीज बढ़ा पाती हैं तभी ये बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अभी सब लोग डिमांड देख रहे हैं, मार्केट से रेस्पॉन्स कैसा आता है। Right. The reason, why I was asking this, because, as raw material prices have been increasing, significantly since December. So, did we take any price revision in Q4? No, not possible. Okay. देखिए, एशियन अगर रिवाइज नहीं करता है तो नो कंपनी हैज द करेज टू इंक्रीज। एशियन बढ़ाता है, बाकी सब कंपनी साथ में एक साथ बढ़ाती है। देखिए, एक्चुअली जो प्राइस है हमारी डीलर प्राइस लिस्ट और एमआरपी, वो सारी कंपनीज की कॉमन है, सिर्फ उस पर नाम ऊपर से बदला हुआ होता है। बाकी हर प्रोडक्ट की प्राइस सेम है सब कंपनीज की, सिर्फ मार्केटिंग की स्कीम और इंसेंटिव और डिस्काउंट का स्ट्रक्चर सबका अपना अपना अलग होता है। बाकी एमआरपी और डीपीएल सबकी कॉमन होती है। Sir, as I understand this, Asian Paints has implemented this price increase of about 2.8%, if I'm not wrong. जी। So, sir, this 80 to 90% of our, this price increase is, comes out to be what percentage change as compared to the previous price? देखिए, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग जो है ना ऑलमोस्ट 50% होती है पेंट की इंडस्ट्री में। राइट। तो जब हम फिनिश प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हमको 3% हमने प्राइस इंक्रीज किया है फिनिश प्रोडक्ट में, तो दैट मीन्स हम 6% रॉ मटेरियल की जो प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है वो कवर कर लेते हैं। राइट, अंडरस्टूड। तो ये अपरेंटली दिखती है कि ये रॉ मटेरियल में 6% का इंक्रीज है, लेकिन वो फिनिश गुड्स में जाके 3% के इंक्रीज से कवर हो जाता है। तो सर आई थिंक अपना सेकंड क्वार्टर में इसका काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा प्राइस इंक्रीज का, पूरा फुल इम्पैक्ट। ये चूँकि दिवाली भी इस क्वार्टर में होती है, जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर होता है, जुलाई के लिए सेल्स भी इसमें दिवाली की सेल्स भी आती हैं, तो होना चाहिए। अभी कोविड से भी बाहर आ गए तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इम्प्रूव रहेगा सेकंड क्वार्टर। And sir, my next question is on demand side, and how has been the demand, paints demand overall, in the past 3 months, April, May and June, and what kind of guidance you want to give for the full year FY22? देखिए, अप्रैल में जून तो एक्सेप्शनल है, जब पूरे कंट्री के हमारे सारे डिपो डीलर, इस बार रूरल एरियाज था वहाँ भी कोविड की वजह से काफ़ी सेल्स हैम्पर हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे हमने ऑलमोस्ट अपने टारगेट का 25 to 30% सेल्स हमने अप्रैल मई के महीने में भी की है। और इस बार जो FY22 में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम इससे करंट ईयर में 50% और नेक्स्ट ईयर भी 50% की ग्रोथ का टारगेट लेके चल रहे हैं, और होपफुली अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो अभी धीरे धीरे इम्प्रूव आ रही है। जैसे जैसे कोविड से बाहर आ रहे हैं, लॉकडाउन खुल गए हैं, तो सही प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू हो गया है, लेबर आने लगी है, तो वो डिमांड आ रही है। ऐसा नहीं है जितना मटेरियल फैक्ट्री में बन रहा है डेली डिस्पैच हो रहा है। That's it from my side, sir. Thanks and thank you. All the best. Thank you. Thank you. Participants to ask a question may press star and 1 now. The next question is from the line of Deepak, an individual investor. Please go ahead. Yes, नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग फुल यूटिलाइजेशन में कितना टर्नओवर कर सकते हैं टॉप लाइन पे? प्लांट का, आप पेंट की बात करना चाह रहे हैं? ओवरऑल रेवेन्यू सर। हाँ, बहुत या स्टील का करना चाह रहे हैं? दोनों में सर, दोनों में सर। देखिए, अभी अगर हमारे पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी आज की डेट में है, तो उसमें हमने इसमें अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया है, अपने ऑन प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 450 करोड़ और 30,000 KL की है। और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम लोग आउटसोर्सिंग उदयपुर और हरियाणा में करा रहे हैं, वहाँ पे हमारी लो प्राइस आइटम की 36,000 KL की कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, और 150 करोड़।
तो टोटल अभी हम अपने एग्जिस्टिंग प्लांट से 600 करोड़ की सप्लाई देने की पोजीशन में हैं। हाँ जी। इससे जैसे हम एक्स्ट्रा जाना चाहेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए हम कुछ मशीनरी की प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्लांट में, या कोई और जगह लोकेट और आउटसोर्सिंग का वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा फ्रेट का डिसएडवांटेज हमें रहता है। तो हम चाहते हैं कि साउथ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में कोई एक और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारा हो पाएगा तो उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है। तो अगर वहाँ पे कुछ होगा तो फिर फ्रेट का एडवांटेज हमारे को मिल जाएगा उसमें। तो सर हम अगर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हम अगर मोटा मोटा 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप लाइन पे? पेंट में देखिए मैंने बताया था अभी 22 और 23 में मिनिमम 50% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, एंड होपफुली वी विल अचीव इट 50%। और आज जो हमने एक प्लान बनाया है कि भाई हम मार्च 26 तक 1000 करोड़ की टर्नओवर करेंगे टॉप लाइन पेंट में, तो उस के ऊपर ही काम कर रहे हैं, उसी के लिए पूरी टीम लगी हुई है। तो हमें लगता है कि उसको हम अचीव कर पाएंगे। उसके लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी इन ड्यू कोर्स उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। लेकिन बिजनेस तो वायबल और प्रॉफिटेबल तो अल्टीमेटली 1000 करोड़ के ऊपर ही जाके बनेगा। हमने 10-12 साल ब्रांड बनाने में, डीलर नेटवर्क क्रिएट करने में, अब कस्टमर लॉयल्टी जनरेट करने में, फिर पेंटर्स और डीलर्स की लॉयल्टी जनरेट करने में लगा दिए हैं। और ये अब हमारे लिए टाइम है कि अब हमारा पूरा प्लांट तैयार हो गया है और अब हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी भी 2-3 जगह है हमारे पास। तो आई थिंक इट इज़ द टाइम, हाई टाइम कि जिस समय हम डिमांड को और ठीक प्राइस के ऊपर दे पाएंगे। ओके सर। और सर जो ये बोरिंग से ये कुछ पे करने का होता है ना, क्योंकि हमने 2021 में भी we have paid good amount of borrowings debt, जीरो डेट कंपनी बनाने का कुछ आपका? देखिए कंपनी तो मेरी जीरो डेट कंपनी है, मेरे पास कोई भी टर्म लोन अभी तक हमारे पास नहीं था, एक्सेप्ट कोविड में हमने कुछ लोन लिया था लो इंटरेस्ट के ऊपर। और ये जरूर है कि हम अब जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं वो भी रिड्यूस कर रहे हैं। स्टील में हमने अपनी काफ़ी लिमिट्स रिड्यूस कर दी हैं, ऑलमोस्ट 70-80% ख़त्म कर दी हैं, रीपे कर दिया है। और अब पेंट के ऊपर लगेंगे तो जैसे पेंट हाइव अप हो जाएगा फिर इस पर भी काम करेंगे। और बाकी हरीश जी आपको बता देंगे इस बारे में, और थोड़ा हरीश जी आप बता दीजिएगा। अभी कोविड के दौरान हम लोग ने करीब 20 करोड़ का कोविड टर्म लोन लिया था जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल था। और इसके अलावा हम लोग ने स्टील में कम किया है, जैसा अभी सर ने बताया कि करीब 30 करोड़ का हमने रीपेमेंट किया है स्टील बिजनेस से। और पेंट का लिमिट एज इट इज हमारा चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं फिर पे आता हूँ। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, you may press star and 1 now. The next question is from the line of Akshay Jain from Jain Capital. Please go ahead. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have few questions. Starting firstly, so what is the view on increasing competition in the paint segment with the entry of companies like Grasim? देखिए ये बड़ा आज की डेट में तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ फील्ड है। अभी मार्केट में ये ज़रूर है कि पेंट में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए हैं, परसेप्शन चेंज हुआ है इंडिगो के आने से, वैल्यूएशन का एक क्राइटेरिया चेंज हो गया है। और 2 साल पहले मेरे को, जैसे आप सबको मालूम है कि JSW भी पेंट में आया है, लेकिन वो भी रिटेलिंग में नहीं है, वो भी इंडस्ट्रियल पेंट बना रहे हैं जो अपनी उनकी कलर कोटेड शीट आती हैं वेयर हाउसेज के लिए, उसी के लिए वो पेंट बना रहे हैं। और पेंट में अगर डेकोरेटिव सेगमेंट में किसी को आना है उसके लिए बहुत बड़ा रिटेल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। अगर आप पेंट की कंपनीज की बात करते हैं, जो पुरानी पेंट की कंपनीज हैं वो 80, 90, 100 ईयर्स की कंपनीज हैं। ओवर ए पीरियड उन्होंने वो ब्रांड लॉयल्टी या
उन्होंने डीलर नेटवर्क क्रिएट किया है। ग्रेसिम का प्लान है कि बहुत एग्रेसिव, उनके पास पैसा है तो वो डेफिनेटली आने के लिए सबका स्वागत है। और ये सबको लग रहा है कि पेंट में 15 से 20% की ग्रोथ एनुअल है, जो एक अकेला सेगमेंट है जहाँ पे अभी चूँकि हमारे यहाँ पर कैपिटा पेंट का कंजम्पशन बहुत कम है, ये भी 3, 4, 5 टाइम जाएगा। तो आई थिंक पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अब ग्रेसिम आएगा तो और अच्छी बात है। जैसे एशियन अभी मार्केट लीडर है तो बाकी लोग भी अपना काम कर रहे हैं, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, सबका अच्छा काम चल रहा है, सबके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो कोई ना कोई हेल्दी कंपटीशन रहेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। पेंट में एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जब से जीएसटी आया है तो वो जो बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जो अपनी गाड़ी में डाल के पेंट बना के बेच के आते थे या आउट ऑफ बुक्स सेल करते थे, वो जो वैट की चोरी होती थी जिसमें एक्साइज की चोरी होती थी, वो अब अनवायबल हो गया है। अब 28% से टैक्स भी 18% घट गया है। तो मेरे को लगता है कि पेंट का बहुत बड़ा बिजनेस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था वो ऑर्गेनाइज में आ गया है। तो मेरे को लगता है कि जितनी भी पेंट कंपनीज आएंगी बहुत बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री की वायबिलिटी ख़त्म है। और जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी, उनकी सबकी वायबिलिटी रहेगी। सब प्लांट चल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने सीमेंट के इतने प्लांट आ रहे हैं, सीमेंट की इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है, सारा कंज्यूम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट लगना है वहाँ फिनिशिंग में पेंट ही लगना है। बराबर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने मेंशन किया अभी आंसर में कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज वे में शिफ्ट हो रहा है, तो सब पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वो ऑन द ग्राउंड एक्चुअली ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम मार्केट शेयर फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर? बिल्कुल हुआ है। आप अगर देख रहे होंगे तो जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट अगर आप मॉनिटर करेंगे पोस्ट जीएसटी, उसका बड़ा चंक, अब देख तुम जीरो तो नहीं होगा, इंडस्ट्री को बंद होने में धीरे धीरे उसको 1-2 साल लग जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा शेयर डेफिनेटली आप सारी पेंट कंपनीज की जो ग्रोथ देख रहे हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ है, तो वे एबनॉर्मल ग्रोथ उसी वजह से है सबकी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे कोलैप्स हो गया है, खत्म हो गया है। Okay. Okay, sir. Sir, lastly, sir, what is the current utilization level at both the plants? देखिए, जो स्टील में तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि 70% का यूटिलाइजेशन है हमारा स्टील प्लांट में, और जो हमारी फ्रेंचाइजी रूट में है हमारा, तो उसमें भी ऑलमोस्ट हम लगभग 70%, 65% की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है हमारा। स्टील में हम और अपनी कैपेसिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, जो अभी हमारे यहाँ करीब 36-37 टन की कैपेसिटी है, इसको अगले 2 साल में 50 लाख टन पे लेके जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि स्टील की डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और इसमें भी हमारा जो मॉडल है, जो एसेट लाइट मॉडल है, उसमें हम यही करते हैं कि जो मार्केट में लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, हम सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन चेंजेस इन देयर प्लांट, अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और ब्रांड का लीवरेज दे के उसी को हम अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज वे में लेके आ रहे हैं। तो वो डिमांड वो मार्केट में ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, वो उनका कंजम्पशन है बाजार में। सिर्फ वो कामधेनु अम्ब्रेला के साथ आके कामधेनु के ब्रांड से वैल्यू एडिशन होने के बाद, क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद उनको अच्छा रिलेशन मिल रहा है, तो उससे भी काम चल रहा है। और पेंट में भी ऑलमोस्ट समझ लीजिएगा अभी 60-70% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी चल रहा है। अब ये जो मैंने आपको बताई है अभी कि 600 करोड़ की हमारी कैपेसिटी बनी है, ये कैपेसिटी अभी हमारी समझ लीजिए 1-1.5 महीने पहले ही सारी मशीन इंस्टॉल हुई है। तो इसका हमारे को जो इम्पैक्ट आएगा वो इस अभी 1 जुलाई से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा इसमें आ जाएगा। Okay. Okay, sir. That's all from my side. Thank you. थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Sunil Chandra from Hem Securities. Please go ahead. Sunil Chandra, please go ahead with your question. Your line is unmuted.
Mr. Chandra, may we request you to unmute yourself if muted from your handset. As there is no response from the line, we'll move to the next question, which is from the line of Kashish Shamwani from Meaton Capital PMS. Please go ahead. Hi, thanks for taking my question. My first question is, what is the debt breakup in paint and steel business at the moment? Debt? Can you repeat it? Debt breakup. What is the debt breakup in paint and steel business at the moment? Okay. In the paint business, we have working capital of 60 crore, and in the steel business, we have 30 crore limit, working capital limit. And for the COVID loan, we have 15 crore COVID loan in paint business. Okay, so paint is working capital 60 crores and COVID loan 15 crores and steel is 30 crores. Yes. Okay. And has been our marketing spend in the paint division in FY21? Market spend is around 60 minus 35. Actually, this year there was change in the presentation of the revenue. So what we have done, we have net off some sales around 35 crore. जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था दैट वाज अराउंड 60 करोड़ ऑन द पेड बिजनेस. आउट ऑफ दैट 35 करोड़ हम लोग ने जो रेवेन्यू था हमारा 237 करोड़ उसमें से कम किया है बिकॉज ऑफ सर्टेन जीएसटी एंड टीडीएस कॉम्प्लिकेशंस. तो इस बार जो स्पेंट अगर आप ग्रॉसअप करके देखेंगे तो ये होगा करीब 60 करोड़ का, और नेट ऑफ में देखेंगे तो करीब 25 करोड़ का ये ब्रांडिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं. इसमें मार्केटिंग एक्सपेंस और स्कीम दोनों, हाँ, स्कीम मार्केटिंग ब्रांडिंग सारा उसमें इंक्लूड रहता है. ओके, एंड व्हाट वुड दिस बी फॉर FY22? सेम पोजीशन चलेगा. ये स्कीम्स जो है ना बेस्ड ऑन द टर्नओवर रहती हैं, परसेंटेज वाइज रहती है. तो जैसे इसका परसेंटेज सेल्स का बढ़ेगा प्रोपोर्शन में वो स्कीम की अमाउंट भी बढ़ेगी. Got it. So, do we need to increase the marketing spend to get from the current base of 200 crores to 600 crores, or our base is ready, our distribution system is ready, and we do not need that much increase in the marketing to achieve that number? नहीं, अभी हम लोग ने जो अपना नेटवर्क तैयार किया हुआ है ये हमारा 400 करोड़ 450 करोड़ तक की सेल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट है. जो हमारे 33 सेल्स डिपो हैं, ये 4000 डीलर का नेटवर्क है, 16000 पेंटर्स का नेटवर्क है. ये 400 से 450 करोड़ की टर्नओवर इससे आराम से अचीव हो सकती है. ओके, एंड विल वी बी EBITDA पॉजिटिव इन FY22? 22 में क्या पूछ रहे हैं आप? क्या हम लोग EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे पेंट बिजनेस में FY20? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. And royalty income has been 85 crores this year in steel business. Next year you are assuming 94 crores. So yes. In presentation you have given a guidance of 150 crores in FY23. So yes. How will you be able to pull that 150 crores, almost 50% jump then? देखिए, अगर कोविड नहीं होता तो ये बिल्कुल जो है हम लोग और पहले अचीव कर लेते हैं, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा ये डिले हुआ है. तो अभी जो हम लेके चल रहे हैं 94 करोड़ 95 करोड़ का, ये बड़ा कंजर्वेटिव साइड में है. अदरवाइज ये 100 प्लस रहेगा इस बार. और जो 50% जम की बात कर रहे हैं, तो जो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, जिस तरह से डिमांड आ रही है, क्योंकि हमारा को अगर कोविड को अगर माइनस कर दें 2 साल और उसके हम एवरेज निकालें पिछले सालों का, तो हमारी ग्रोथ के हिसाब से 150 करोड़ की रॉयल्टी अचीवेबल है पूरी तरह से बाई FY23. और कैपेसिटी हम लोग 50 लाख टन करने जा रहे हैं. डे बाई डे कैपेसिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है. ओके, इसमें हमको कितना कैपेक्स लगेगा 50 लाख टन करने में? हमारा जो मॉडल है ये एसेट लाइट मॉडल है. इसमें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है. जो मार्केट के अंदर यूनिट है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं, उनको हम अपने ब्रांड अम्ब्रेला के अंदर लेके आते हैं और उनके जो प्लांट है उसको अपग्रेड कराते हैं. अपग्रेड उन्हीं की कॉस्ट का होता है. जो भी 5-10 करोड़ का खर्चा होता है वो यूनिट
का जो ऑनर है वो ही करता है। हम लोग उसको मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, अपना मार्केटिंग नेटवर्क यूज़ करने के लिए देते हैं, हमारी क्वालिटी मॉनिटरिंग की टीम वहाँ डिप्यूट करते हैं और उसमें ब्रांड का लीवरेज देते हैं, यानी कि ब्रांड यूज़ करने की परमिशन देते हैं उसको हम, और सारा सपोर्ट उसको कामधेनु का रहता है, जिसके बदले में हम उससे रॉयल्टी चार्ज करते हैं। ओके, तो हमारा खुद इसमें हमारे को कोई कैपेक्स नहीं लगाना होता है, हम कैपेसिटी उसको मॉनिटर करते हैं। ये हमारा यूनिक बिजनेस मॉडल है एसेट लाइट। और इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे हम उसको कैपेसिटी इसलिए बोलते हैं कि हमारा उसके साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट रहता है कि वो सिर्फ हमारे लिए बनाएगा और सिर्फ हमारे ही मार्केटिंग नेटवर्क में सेल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी मटेरियल को सेल करेगा। और जो एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, नई यूनिट भी जोड़ रहे हैं हम लोग और एग्जिस्टिंग यूनिट है उनमें भी एक्सपेंशन चल रहा है। ओके, गॉट इट। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच। Next person is from the line of Sunil Chandra from SM Securities. Please go ahead. My question is regarding demerger petition. May we know how many times case was tested in NCLT bench? We would be pleased if you please share petition case number so that we can monitor online. Sorry to interrupt you, Mr. Chandra, but your voice is not audible. It is coming muffled. Can you please check? Okay, sorry. Mr. Sunil Chandra, I have left the queue. Ladies and gentlemen, anyone who wishes to ask a question, please press star and 1. The next question is from the line of Sachin Shah from SS Securities. Please go ahead. Thank you, sir, for giving me an opportunity. So I have a couple of questions. First is there is an exceptional item of 10 crores which is lost due to fire accident. What is the status of that claim? How much you have already received from the insurance company and how have they sanctioned the remaining amount now? ये इंश्योरेंस का जो एस्टीमेट अभी इंटरिम असेसमेंट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, इसके दो एलिमेंट थे। एक एलिमेंट में इन्वेंट्री पार्ट था, दूसरे में प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट था, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें जो इन्वेंट्री की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड होके अप्रूव होके और हेड ऑफिस जा चुकी है। जो प्लांट एंड मशीनरी का है उसका भी इंटरिम असेसमेंट हो गया है, लेकिन रिपोर्ट अभी सर्वेयर फाइल करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। और इसमें जो टोटल अभी हमारे को रिसीव होने का बेस्ड ऑन द इंटरिम असेसमेंट बाय द सर्वेयर, ऐसा लगता है कि 10 करोड़ रुपए का इसमें हमें हिट लेना होगा, जो हमने अभी एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर दिया है एज एन एक्सेप्शनल आइटम। और जो अभी एज एन इंटरिम रिलीफ उन्होंने हमको 5 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं और करीब 57 लाख का एक सालवेज का डिस्पोजल हुआ है, वो अमाउंट भी हमें रिसीव हुआ है। तो 557 लाख का रिसीट है अभी हमारे को। Okay. And what will be the status of your phase 2 of refurbishment of your own plant? बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, इसको जो है एकदम कंप्लीट होने वाला है। अभी नेक्स्ट मंथ में ये फुल फ्लैश आ जाएगा प्रोडक्शन में। ओके, ऑपरेशनल हो जाएंगे उस? यस, ऑपरेशनल तो अभी भी है, लेकिन फुल फ्लैश ऑपरेशन में, फुल फ्लैश प्रोडक्शन में नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। ओके। And another question is what is the status of the demerger of your paint business? By when do you expect to list Kamdenu Ventures? Will you look? Please go ahead. So will you be looking forward to for private equity or strategic partner in the business? What would be the objective? नहीं, अभी तो दोनों बिजनेस को इंडिपेंडेंट करके इसको फोकस करना है कि इसको स्केल अप कैसे करना है बिजनेस को। और जहाँ तक आपने स्टेटस का बताया है, इसमें हम लोग ने एनसीएलटी के अंदर एप्लीकेशन फाइल की हुई है 15 मार्च को। इसका हियरिंग भी अभी 9 जुलाई के लिए फिक्स हो गया है और हम लोग विद इन FY22 शेयर लिस्ट हो जाना चाहिए। ऐसा हम लोग इस लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। जहाँ तक प्राइवेट इक्विटी का या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का है, तो डेफिनेटली ग्रो करने के लिए फंड्स की, तो एक बार लिस्टिंग होने के बाद में उस पर भी मतलब प्लान करेंगे। हमारे को 1000 करोड़ की टर्नओवर लेके जाना है, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली सपोर्ट की जरूरत होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की या प्राइवेट इक्विटी की या और फंड रेजिंग की, किसी भी मीन्स से। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर फिर कैसे होगा? तो पेंट बिजनेस आप सब्सिडरी में रखेंगे और कामधेनु वेंचर्स के अंदर?
सर ये जो कंपनी है मिरर इमेज में होगी, कामधेनु वेंचर लिमिटेड लिस्ट होगी, और कामधेनु वेंचर लिमिटेड की सब्सिडरी कामधेनु कलर कोटिंग लिमिटेड है, जिसके अंदर पेंट बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। तो जो फंड्स आने की बात कर रहे हैं आप जो है, ये कामधेनु वेंचर में भी आ सकते हैं, कामधेनु कलर कोटिंग्स में भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ द डील, कि उसमें प्राइवेट इक्विटी आ रहा है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहा है, या कोई QIP के थ्रू आ रहा है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये इसमें आप स्ट्रक्चर पे कुछ बता सकते हैं कि हाउ द शेयर कैपिटल और नेटवर्थ ऑफ न्यूली लिस्टेड कंपनी वुड बी, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? शेयर होल्डिंग इसमें 1:1 का मिरर शेयर होल्डिंग में हम लोग दे रहे हैं, जिसके कामधेनु का 10 रुपए का शेयर है, उसको 5 रुपए का एक पेंट का शेयर देंगे। ओके, गॉट इट, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Deepak, an individual investor. Please go ahead. यस सर, थैंक यू फॉर दी फॉलोअप। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे लास्ट 10 ईयर्स में हमारा ओवरऑल टर्नओवर जो कैगर है वो 25% के अराउंड है, तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कैन वी एक्सपेक्ट, इफ वी आर एक्सपेक्टिंग 50% ग्रोथ इन पेंट, तो TMT का मिला के सेम मतलब सेम इन नेक्स्ट 5 years 25% कैगर सर? देखिए, आपने जैसे 10 ईयर्स का निकाला है 25% CAGR, अगर इसमें से हम कोविड के निकाल दें, अगर सॉरी ये जो हमारा जो डिसरप्शन हुआ था फायर की वजह से, इसको निकाल दें और उस एवरेज को निकालें, तो दैट कम्स टू 35%। हाँ जी सर। तो अब हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि जैसे अभी हमने मार्केटिंग नेटवर्क भी खड़ा कर लिया है, हमारे पास सेल्स डिपो भी सफिशिएंट है, मेन पावर भी है, और ब्रांडिंग को भी हम लोग पुश कर रहे हैं, तो हमें 50% के लिए, और हम लोग ने प्लांट भी ऐड कर लिए हैं जो आउटसोर्सिंग रूट पे हम लोग गए हैं अभी, तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए 50% की ग्रोथ हमें बिल्कुल लगती है। सर ये तो पेंट में 50% हुआ, ओवरऑल रेवेन्यू में कितना इंक्लूडिंग TMT सर? नहीं, ओवरऑल तो जब कंपनियां डीमर्जर के बाद अलग अलग हो जाएंगी तो फिर आपको स्टील और पेंट दोनों को अलग अलग देखना होगा। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे पेंट की, कि पेंट में हम लोग 50% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं आगे। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में भी हम लोग 20 से 25% की ग्रोथ आगे भी करेंगे, और अभी भी अगर पास का ट्रैक देखें तो हमारी ग्रोथ इस तरह से आ रही है। तो सर इसमें प्रॉफिट मार्जिन मतलब ऑब्वियसली सेल्स के साथ कितने मतलब आइडियल, व्हाट विल बी द डिजायर्ड EBIT मार्जिन और EBITDA मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड इफ वी अचीव सेल ऑफ 1000 crore इन पेंट बिजनेस सर? नहीं, वो तो हमने इसमें दिया है ना, प्रेजेंटेशन में भी जैसे दिया है कि हम लोग 12% का EBITDA लेवल लेके चल रहे हैं 1000 करोड़ के ऊपर। ठीक है। और डीमर्जर कब तक मतलब एनी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन कुछ? सर अभी फर्स्ट हियरिंग इसमें 9 जुलाई की फिक्स हुई है, और हम लोग इसमें अपनी मीटिंग्स को भी रिक्वेस्ट हमने किया है कि कोविड ड्यूरेशन के दौरान है तो इसको ऑनलाइन अलाउ किया जाए, और कुछ कंपनीज की हमने एग्जाम्शन के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। तो ओवरऑल ये मान के चल रहे हैं कि FY22 में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि पेंट बिजनेस में अगर आप प्लेयर्स देखोगे तो काफ़ी कंपटीशन है, मतलब इतना ग्रोथ मतलब गाइडेंस कोई कंपनी दे नहीं रही है, तो व्हाट ट्रिगर मतलब आपको व्हाट आर द टेलविंड्स व्हिच गिविंग कॉन्फिडेंस ऑफ 50% ग्रोथ? एंड मतलब आपके कॉम्पिटिटर आई थिंक कि एंट्री बिजनेस सच एज शालीमार पेंट और ये होंगे, क्योंकि if you see in tier 1 city, you know, people go with dealers or Asian Paints only, or आप परसेंट की बात छोड़ दीजिए, आप एब्सोल्यूट टर्म में बात करिए। जब हम एशियन की बात करते हैं तो 10,000 करोड़ की सेल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर उनका टारगेट 10% बढ़ा के 11,000 करोड़ करने का है। हम लोग 200 करोड़ की सेल कर रहे हैं और अगले साल हम 300 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो परसेंटेज टर्म में 50 जरूर दिख रहा है, लेकिन हमें मार्केट शेयर सिर्फ 100 करोड़ का ही चाहिए। तो आप वो टर्म्स जो है ना, वो आप जिस तरह से परसेंटेज की बात देख रहे हैं, इसको इस परस्पेक्टिव में नहीं देखा जाएगा परसेंटेज को, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर मैं बात करूं तो 15 से 20% की तो इंडस्ट्री की ग्रोथ है। ठीक है सर, गॉट इट सर, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, this was the last question for today.
I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. I take this opportunity to thank you everyone for joining on the call. I hope we have been able to address all your queries. For any further information, kindly get in touch with me or SGA, our investor relation advisor. Thank you once again. Thank you. Thank you. On behalf of Kamdhenu Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.